Hello students, today we will discuss B-spline curve. In this, we cover topics Bezier versus B-spline curve, definition and representation of B-spline curve, types of knot vectors, properties of B-spline curve, and an example. So let's see what is the similarities and dissimilarities between Bezier versus B-spline curve. The first similarity is that both use approximation method to draw the curve. There are two methods to draw a curve, approximation method and interpolation method. Both curves uses approximation method to draw the curve. The second similarity is both possesses convection property. It means the curve drawn lies completely inside the polygon made by the control points. कंट्रोल पॉइंट्स को लेकर जो पॉलीगन बनेगा तो जो कर्व होगा वो उस पॉलीगन के अंदर पूरी तरीके से लाई करेगा. दिस इज व्हाट द कॉन्वेक्शन प्रॉपर्टी एंड इन बोथ द कर्व follows convection property. The difference between these two is the first one, degree of polynomial is independent of control points. In Bezier curve, degree is dependent on the number of control points. In Bezier curve, degree is calculated as number of control points minus 1. But in B-spline curve, degree of polynomial is independent of the number of control points. There is no relationship between the degree and the number of control points in B-spline curve. The second dissimilarity is local control over spline shape. In Bezier curve, if you change the position of one control point, then the whole curve is affected. That is, the shape of the whole curve is changed. But in case of B-spline curve, if you change the position of one control point, the region nearby of control point is only affected, not the whole curve. This is what called local control over the shape. In Bezier curve, if you change the location of one point, it affects the overall curve. This is the global control over the shape. The Bezier curve uses global control over the shape, and B-spline curve allows local control over the spline shape. The third dissimilarity is drawing B-spline curve is more complex because it requires more information and the computation is also more complex as compared to Bezier curve. Let's see how a B-spline curve is defined. This is defined by the equation Pt is equal to summation k equals to 0 to n pk bkd t, where t is in the region t min and t max, and the value of d is greater than or equal to 2 and less than or equal to n plus 1. Here pk are the input set of n plus 1 control points. So pk is representing the set of control points that are n plus 1. Okay, that's why the summation goes from 0 to n. That is, number of control points are p0, p1 to pn, that is n plus 1. B, K, D are blending functions, are polynomials of degree d minus 1, where parameter d can be chosen to be any integer value in the range from 2 to up to number of control points n plus 1. Here B, K, D are the blending functions and the degree of these functions are d minus 1. And the value of d can be selected between 2 to n plus 1, where n plus 1 is the number of control points. तो B-spline कर्व में जो डिग्री है इट इज सेलेक्टेड बाई अस. यू कैन नॉट कैलकुलेट अ डिग्री. हमें डिग्री खुद से अपने आप सेलेक्ट करनी है कि क्या डिग्री होगी, बिकॉज द डिग्री एंड द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. द पैरामीटर टी नाउ डिपेंड्स ऑन हाउ वी चूज अदर पैरामीटर्स. तो जो पैरामीटर टी है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि जो पहले के दो पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या है. तो पैरामीटर टी की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स एंड द डिग्री ऑफ द ब्लेंडिंग फंक्शंस. इन दोनों के यूज करके हम पैरामीटर टी की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं. और द पैरामीटर टी की वैल्यू जरूरी नहीं है कि 0 और 1 के बीच में लाई करे, जैसा कि बेजियर कर्व के केस में था. तो वहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई करती थी. यहाँ पे दिस इज नॉट द रेस्ट्रिक्शन कि 0 1 के बीच में लाई करनी चाहिए. इट में लाई बिटवीन एनी टू नंबर्स. Now, how we can represent blending functions? So this is represented by an recursive function.
you can see this recursive function. This is a complex recursive function, and in this they are using 3 parameters. First is n plus 1 control points. In this function we are using n plus 1 control points. Second parameter is m plus 1 not values, and the third is degree d. And there is a relationship between these 2 parameters, and the relationship is m is equal to n plus d plus 1. This condition must be satisfied. तो अगर हमें नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स पता है, दैट इज n की वैल्यू पता है, हमें डिग्री d पता है, तो वी कैन कंप्यूट m, दैट इज, एंड देन इफ यू कंप्यूट n, तो देयर आर m प्लस 1 नॉट वैल्यूज. ओके, तो इससे हम m कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, अगर हमें m प्लस 1 नॉट्स की वैल्यू पता है और n प्लस 1 कंट्रोल पॉइंट्स पता है, तो इनको यूज करके हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं. d इज इक्वल टू m माइनस n माइनस 1. तो हमें अगर कोई 2 पैरामीटर्स की वैल्यू पता है, तो हम तीसरे पैरामीटर की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ नॉट वेक्टर्स. देयर आर 3 टाइप्स: यूनिफॉर्म, ओपन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. इन यूनिफॉर्म स्पेसिंग बिटवीन नॉट वैल्यूज इज कांस्टेंट. तो जो नॉट वैल्यूज के बीच में स्पेसिंग होगी वो कांस्टेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल, you can see 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, the spacing is 1. That is constant between any 2 not values. Second is open uniform, in which there is a repetition of values in the not vector. जहाँ पे not values की repetition हो रहा है. जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 0, 0, 0, 1, 1, 1. तो 0 is repeating as well as 1 is repeating. If there is repetition of not values, then the not vectors are called open uniform. And the last one is non-uniform. That is, spacing between not values is not constant. Like in the example 1, 3, 4, 7, 8, 22, you can see the spacing between any 2 values is not fixed. Okay, so that's why it is non-uniform. So these are the 3 class of not vectors. Okay. Now let's see the properties of B-spline curve. The first and important property is local control over the curve shape. Okay. That is, if you change the position of one control point, it does not affect the overall shape of the curve. पूरा shape में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उस रीजन में चेंज होगा जो उस कंट्रोल पॉइंट के आसपास के हैं. It affects only the region that is nearby of the control point. This is what called local control. That is against global control. In global control, if you change the position of one control point, it affects the whole curve. Okay, in the figure you can see that from left, the third control point, we are changing the position in A, and the curve is drawn again in B. You can see the rest of the curve is same, only that area nearby the control point is only changed. Okay. The second property is for n plus 1 control points, the curve is described with n plus 1 blending functions. अगर n plus 1 control points हैं, तो ब्लेंडिंग फंक्शंस भी n प्लस 1 होंगे. तो कितने ब्लेंडिंग फंक्शंस होंगे ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट से. ओके, ईच ब्लेंडिंग फंक्शन BKD डिफाइंड ओवर D सब इंटरवल्स और द टोटल रेंज ऑफ T स्टार्टिंग एट नॉट वैल्यू Tk. तो यहाँ पे जो ब्लेंडिंग फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, दैट इज ओवर ए सब इंटरवल. ओके, वी हैव टू टेक ए सब इंटरवल ऑफ नॉट वैल्यूज एंड देन डिफाइन द ब्लेंडिंग फंक्शन BKD. Okay, so this is what this property is saying. The range of parameter T is divided into n plus D sub intervals by the n plus D plus 1 values specified in the not vector. तो जो हमारे पास नॉट वैल्यूज हैं उनको हमें n plus D सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, और नॉट वेक्टर में वैल्यूज कितनी होंगी, n plus D plus 1. दिस इज द फॉर्मूला इज इक्वल टू n plus D plus 1. इतने नॉट वैल्यूज होंगी और इन नॉट वैल्यूज को हमें n plus D सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है. दिस इज, एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ द पैरामीटर T. तो ये सब हम देखेंगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हाउ वी हैव टू मेक द सब इंटरवल्स. ओके, ईच सेक्शन ऑफ B-spline कर्व बिटवीन 2 सक्सेसिव नॉट वैल्यूज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय D कंट्रोल पॉइंट्स. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर रहा है, इसको लोकल कंट्रोल की बात करता है शेप के ऊपर.
तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी सेक्शन है बी स्प्लाइन कर्व का, दो सक्सेसिव नॉट वैल्यूज के बीच में जो बी स्प्लाइन कर्व बनेगा वो इन्फ्लुएंस होगा बाय डी कंट्रोल पॉइंट्स, ओके, नॉट n+1 कंट्रोल पॉइंट. There are n+1 control points. Out of these, only d control points can affect the shape of the curve between two successive knot values. तो कोई भी दो सक्सेसिव नॉट वैल्यूज लेंगे, उसके बीच में जो कर्व ड्रॉ हो रहा है वो कर्व अफेक्ट हो रहा है ओनली बाई डी कंट्रोल पॉइंट्स, नॉट ऑन द n+1 कंट्रोल पॉइंट. दैट इज व्हाट वी कॉल लोकल कंट्रोल. कि पूरा शेप अफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ portion of the shape will be affected. So how much portion will be affected, or how many control points will affect that portion. So this is saying that two successive knot values के बीच में जो curve draw होगा that is influenced by only d control points, not all n+1 control points. And last one is any control point can affect the shape of at most d sections. तो कोई भी control point है वो कितने sections को अफेक्ट कर सकता है कर्व के शेप पर, तो वो है डी सेक्शंस. ओके, तो जो डी सेक्शंस बनेंगे यूजिंग द नॉट वैल्यूज, तो वन कंट्रोल पॉइंट कैन अफेक्ट द शेप ऑफ एटमोस्ट डी सेक्शंस, नॉट ऑल द सेक्शंस. तो जो लास्ट टू प्रॉपर्टीज हैं दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, एंड बोथ आर सेइंग दैट देयर इज ए लोकल कंट्रोल ओवर द शेप ऑफ स्प्लाइन कर्व. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म पीरियोडिक बी स्प्लाइन. एक एग्जाम्पल तो से देखते हैं कि हाउ वी कैन ड्रॉ ए बी स्प्लाइन कर्व. हियर वी आर टेकिंग ए यूनिफॉर्म पीरियोडिक बी स्प्लाइन. इट मीन्स द नॉट वैल्यूज आर पीरियोडिक, दैट इज यूनिफॉर्म. तो हमने पैरामीटर जो लिए हैं डी और एन, उनकी वैल्यू ली है 3. तो नॉट वेक्टर में कितने वैल्यूज होंगे, तो इक्वेशन होती है m = n+d+1. तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज को पुट करने के बाद वी गेट 7. तो नॉट वैल्यूज होंगे 7, और यहाँ पे जो क्लास ऑफ नॉट वैल्यू है वो है यूनिफॉर्म. द फर्स्ट क्लास ऑफ नॉट वेक्टर यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी आर ड्राइंग यूनिफॉर्म पीरियोडिक स्प्लाइन कर्व. इसका मतलब दो नॉट वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा. तो आप कोई भी 7 नॉट वैल्यूज अपने चॉइस में ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने जो लिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. वी हैव टेकन 7 नॉट वैल्यूज एंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉट वैल्यूज इज 1. ओके, तो यहाँ पे पैरामीटर u है. ये u जो पैरामीटर यूज होगा आपका ब्लेंडिंग फंक्शन कैलकुलेट करने में, उसकी जो रेंज है वो 0 to 6 है, यानी फर्स्ट नॉट वैल्यू से लास्ट नॉट वैल्यू तक. और कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, तो उसका फार्मूला होता है n+d. तो जो हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि देयर विल बी n+d+1 नॉट वैल्यू होंगी और n+d सब इंटरवल्स होंगे. तो n+d = 6 आ रहा है, तो देयर विल बी 6 सब इंटरवल्स. ठीक है. नाउ हाउ मैनी ब्लेंडिंग फंक्शंस विल बी देयर. तो हमने देखा था प्रॉपर्टी में कि अगर n+1 कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो n+1 ब्लेंडिंग फंक्शंस होंगे, यानी n की वैल्यू जो ब्लेंडिंग जो कर्व की इक्वेशन है समेशन k = 0 to n. तो 0 to n यानी 0 से 3 हम जा रहे हैं. इट मीन्स P0, P1, P2, P3. There are 4 control points. So n is 1, n is 3. So number of control points is n+1. That is 4. That's why summation is going from k = 0 to n. Okay. So there are 4 blending functions are there, and we have to compute all the 4 blending functions using the recursive equation. Okay. So you hope you will be able to understand till now. Let's see how we can compute blending functions. Now let's see uniform periodic spline. And this is the equation of the B spline curve. You are given d degree and n = 3. Total number of control points are n+1. That now becomes 4. Knot values are computed with the formula n+d+1. Putting the values of this, we get 7. Now, since we are dealing with uniform periodic spline, the knot values will have difference that is constant. So we have taken 7 knot values 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the difference between is 1, that is constant. Okay, the range of t will be from 0 to 6.
sub intervals is given by n plus d, that is equal to 6. And there are, if you look at the figure, this equation k is from 0 to n is 3, that is 0 to 3. That means this is b k0d, 1d, 2d, 3d. It means there are 4 blending functions. Okay, so these are the 4 blending functions, and each of the 4 blending functions will spans about d is equal to 3 subintervals. Okay, so here we have to compute 4 blending functions, and now this equation is set to this one. Now this, अगर समेशन को हम एक्सपेंड करें, दिस बिकम्स p0 b03t, p1 b13t, p2 b23t, and so on, where p0, p1, p2 and p3 are control points, and b03, b13, b23 and b33 are the blending functions जो हमें कंप्यूट करने हैं. And this is the formula for computing the blending function. This is a recursive formula. Okay, now first we have to compute the b03, और जिस तरीके से हम b03 कंप्यूट करेंगे उस तरीके से हम b13, b23 and b33 भी कंप्यूट करेंगे. Okay, so let's see how we can compute this b03. Now computing this b03 using this formula, this is a recursive formula. If you put k is equal to 0 and d is equal to 3, तो since it is recursive formula, तो हमें b03 अगर कंप्यूट करना है तो हमें यहाँ k की वैल्यू 0 है, d माइनस 1, 3 माइनस 1, दिस बिकम्स 2, यानी कि हमें b02 कंप्यूट करना पड़ेगा. और k प्लस 1 करेंगे, k चूँकि हमारा 0 है तो k प्लस 1 बिकम्स 1, एंड d माइनस 1 3, d माइनस 1, दिस बिकम्स 2. तो ये हो जाएगा b12. इट मीन्स टू कंप्यूट b03 वी हैव टू कंप्यूट b12 एंड b22. ओके, तभी जाके हम b03 कंप्यूट कर पाएंगे. टू कंप्यूट b03 वी हैव टू कंप्यूट दिस इज b, k इज 0 एंड d इक्वल है d माइनस 1, और d हमारा कितना है 3, तो दिस बिकम्स 2. एंड नाउ दिस बिकम्स k प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज 1, और d माइनस 1, d आपका 3 है, तो दिस बिकम्स 2. तो b03 कंप्यूट करना है तो पहले b02 करना है, फिर b12 करना है. अब b02 कंप्यूट करना है तो पुट b, k की वैल्यू 0 यहाँ और d की वैल्यू 2 रखेंगे, तो दिस बिकम्स k रिमेन्स सेम 0 और d माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो दिस बिकम्स b01. और दिस बिकम्स k प्लस 1, तो आपका k 0 है तो ये हो जाएगा 1, और d माइनस 1, d आपका 2 है तो हो जाएगा 1, तो दिस बिकम्स b11. सेम वे अगर हमें b12 कंप्यूट करना है तो यहाँ पे k आपका 1 है और d आपका 2 है, तो इसे करेंगे तो b k d माइनस 1, तो k में कोई चेंज नहीं हो रहा है और d में एक कम हो रहा है, दिस बिकम्स b11. सेम वे अगर हम b इसको चेक करें तो k प्लस 1, तो दिस बिकम्स 1, और प्लस 1 दिस बिकम्स 2, और 2 माइनस 1 दिस बिकम्स 1, तो हमें b21 निकालना होगा. ओके, हम कहाँ तक प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर देते. इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, bk1, यानी कि जो सेकंड पैरामीटर ये जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम इसको इससे डिवाइड करते रहेंगे. यहाँ देख सकते हैं जो सेकंड पैरामीटर है, नाउ इट कम्स टू 1, तो वी हैव टू स्टॉप हियर. नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन. कि हमें पहले ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चाहिए और इसके लिए ये दोनों चाहिए, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तब हम b03 निकाल पाएंगे. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट टेक द रेंज. ओके, नाउ द रेंज इज व्हाट, तो इफ यू सी दिस b03 निकालना है तो पहले हमें t की वैल्यू देनी होगी, जो हमारा इंटरवल है, तो 0 1 2 3 इंटरवल में निकाल रहे हैं. दिस इज द नॉट वेक्टर जिसमें हम b03 निकालेंगे. 1 2 3 4 में हम b13 निकालेंगे. 2 3 4 5 में हम
B23 निकालेंगे और 3, 4, 5, 6 में हम B33 निकालेंगे। तो वी आर कंप्यूटिंग B03। तो हमारा रेंज क्या है, t की वैल्यू 0 से 1, तब हम निकालेंगे B03 क्या होगा, फिर 1 से 2, ओके, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, हमें B03 निकालना है हर एक रेंज के लिए। ओके, तो हाउ वी कंप्यूट, फर्स्ट हम देख रहे हैं रेंज जो हमारी है 0 से 1, इस रेंज को कैसे के लिए हमें B03 निकालना है। तो जो हमारा रेंज है दिस इज 1। ओके, नाउ लेट्स सी B01, इसको हम इस इक्वेशन से ज़रा मैच करा के देखते हैं। ठीक है, तो यू के क्या है आपका 0 है, यू के प्लस 1 क्या है 1 है। ठीक है, तो ये रेंज कितनी हो गई, 0 से 1 तक हो गई। ठीक है ना, और 0 से 1 के बीच में ही हम निकाल रहे हैं। तो 0 से 1 अगर जो रेंज आ रही है वो 0 से 1 आ रही है, और इसी रेंज के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस बिकम्स 1। तो दिस B01 इज नाउ बिकम्स 1। नाउ कम टू 1, 1, इसके लिए देखें तो यू के की वैल्यू 1 है, यू के प्लस 1 की वैल्यू ये 1 है। तो हम 1 से 1 जा रहे हैं और रेंज हमारी है 0 से 1। तो दिस रेंज 1 to 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 0 to 1। तो वी कम टू दिस अदरवाइज, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई अदरवाइज। तो हम ये हो जाएगा आपका B11 इज नाउ इक्वल टू 0। ये भी B11 है, इट इज ऑल्सो 0। B21 है, इट मीन्स दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो ये वैल्यू ऑलवेज बड़ी होनी चाहिए इससे। ठीक है, यहाँ तो पहले ही कंडीशन ही फॉल्स हो जा रही है कि दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ओके, और वैसे भी अगर ये 1 और 2 भी होता है तो भी कंडीशन फॉल्स होती, क्योंकि रेंज हमारी है 0 to 1। इसके इस रेंज में हम ब्लेंडिंग फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो रेंज आ रही है वो 2 से 1 आ रही है। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इट सेज दैट B21 इज ऑल्सो 0। ओके, तो हमने ये चारों कैलकुलेट कर दिया। अब इन चारों को यूज करके हमें इनको निकालना है यूजिंग द सेकंड फंक्शन। ओके, ना सेकंड फंक्शन यूज करेंगे B02, यानी K इज 0 एंड D इज 2। ओके, तो B02 फ्रॉम दिस इक्वेशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो दिस इज T माइनस यू के। ओके, यू के कितना है आपका 0, तो दिस बिकम्स U0। व्हाट इज U0 क्या है, तो आपकी जो रेंज है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये आपका ये U0 है, U1 है, U2 है, U3 है, U4, U5, 6 है। ओके, तो अगर हम इसको अप्लाई करें यहाँ पे तो यू विल सी दैट दिस इज U0, U0 इज 0, दिस इज UK प्लस D माइनस 1। तो KD यानी 0 2, 2 माइनस 1 U1, U1 इज 1, माइनस UK, K इज 0, U0 इज 0। दिस इज BKD माइनस 1, K कितना है आपका 0, D माइनस 1 इज 1, दिस इज B01। प्लस करेंगे, ये आएगा K 0 है तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1, और 1 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0। तो दिस वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इट 0। तो दिस कम्स आउट टू बी सिंपली T। ओके, द सेम वे यू हैव दिस कम्स 1 2 निकालेंगे। ओके, तो 1 2 निकालेंगे तो K इज 1 और D इज 2। ओके, तो K इज 1, D इज 2, तो 2 माइनस 1 1, दिस बिकम्स B11, और B11 कितना है हमारा 0, तो दिस इज 0। और ये निकालेंगे 2 1 हो जाएगा, ये 2 1 क्या है 0, दिस इज ऑल्सो 0। तो 0 प्लस 0, तो दिस B12 इज 0। ओके, द सेम वे B03 निकालेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। तो T माइनस दिस इज योर B03, दिस इज योर T माइनस
0, u0 इज 0। ये हो जाएगा k प्लस डी माइनस वन, के प्लस डी माइनस वन दैट इज u2। u2 कितना है आपका 2 है, uk 0 है तो ये 0। दिस बिकम्स 0 2, b02 कितना है आपका, हमने निकाला था b02 इज 2, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई t प्लस इस फंक्शन में आएंगे तो ये होगा k प्लस वन दैट इज 2 और ये हो जाएगा 1, तो दिस इज 2 1 दैट इज 0, तो दिस इज बिकम्स 0, तो दिस बिकम्स t बाई 2। तो b03 is coming t by 2 for the range this. So you can see that, so this is t and t, this is t square, okay. So this is come out of t square by 2 b03 in the range 0 to 1. So this is what you can see that in 0 to 1 range it is comes out to be 1 by t square, okay. The same way you have to calculate in the region 1 to 2 and you get this value। 2 to 3 रेंज में b03 की वैल्यू आएगी दिस वन। तो ये है यू हैव कंप्यूटेड b03 दैट वन ओनली। सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट दिस वे, और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो रेंज यहाँ से शुरू होगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये वाली। जब b23 निकालेंगे तो सेम लॉजिक लगाएंगे मगर रेंज चेंज हो जाएगी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। एंड जब वन 3 कैलकुलेट करेंगे तो इस इंटरवल को फॉलो करेंगे तो रेंज हो जाएगी 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6। इस तरीके से आप चारों ब्लेंडिंग फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे। और आफ्टर गेटिंग ऑल द ब्लेंडिंग फंक्शंस एंड पुटिंग दीज ब्लेंडिंग फंक्शन इन दिस इक्वेशन एंड देन वी हैव टू टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t एंड देन ड्रॉ द आवर कर्व, ओके। नाउ हियर I have shown to you the blending function b03 that I have already calculated for you for the sub interval 0, 1, 2, 3. Same way the blending function 1, 3 is calculated for the sub interval 1, 2, 3, 4. Same way you have to calculate blending function 2, 3 for the interval 2, 3, 4, 5 and b33 for sub interval 3, 4, 5, 6. That's why you have been able to calculate all the 4 blending functions. After calculating these 4 blending functions, next step is to draw the curve. So here there are 4 curves corresponding to the blending functions. You can also draw all the curves in a single graph, or you may also draw like that. So this is what the procedure of drawing a B-spline curve. In this video, you have learned what is the difference between Bezier and B-spline curve. What is a B-spline curve, what are the properties of B-spline curve, what are the different types of knot values used in B-spline curve, and also you have seen an example how to construct a B-spline curve. Hope you will understand. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.